class बच्चे. So children, this is your Farhad ma'am who welcomes you all in your English class. Today this video is gonna to be the part third. Alright, this is the part third in which I will discuss the remaining exercises. Alright, earlier I have shared you two videos, that is part 1 and part 2. In part 1 we have done the explanation of the story, and in the part 2 we have discussed the exercises, that is question answer, fill in the blanks and all. टिल थिंक एंड आंसर तक हमने किया है पार्ट टू में. ऑल राइट, रीड एंड अंडरस्टैंड से लेकर थिंक एंड आंसर तक हमने पार्ट टू में किया है. एंड इन द पार्ट थर्ड वी आर गोना स्टार्ट द ग्रामर स्पॉटलाइट. फाइन, ओके. सो चिल्ड्रेन, don't forget to do subscribe my channel and hit the like button. Okay, okay. So coming to the exercises, in subject verb agreement we will come to know about the rules. All right, okay, so let's start. See children, if the subject is singular, as I have already told you that if the subject is singular then it will take the singular verb. All right, singular subject, or you can say singular noun. If the subject is singular noun or pronoun, then it will take plural, sorry, it will take singular subject also. Okay, singular subject will take singular. Sing singular means it is the short form of singular verb. All right, सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स व्हाट. फॉर एग्जांपल जैसे हो जाएगा आपका ही, शी, इट, एनी नेम. ऑल राइट, नाउन हो गया आपका कोई भी नेम हो जाएगा, एंड प्रोनाउन में आपका ही, शी, इट आ जाएगा. ऑल राइट, ओके. तो ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं हमारे, वो क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं. फाइन. एंड सिंगुलर वर्ब, हाउ डू वी नो कम टू नो दैट वर्ब इज सिंगुलर. सिंगुलर वर्ब, तो सिंगुलर वर्ब में हमेशा आप देखना उसमें क्या होता है, आइदर यू हैव टू यूज एस और ई एस, यू हैव टू ऐड एस ई एस. सिंगुलर वर्ब में हमें क्या लगाना होता है, एस और ई एस लगाना होता है. फाइन, ओके. फॉर एग्जाम्पल, ही ईट्स मैंगो. ही ईट्स मैंगो. हियर द सब्जेक्ट इज व्हाट, दैट इज, wait, let me erase it. I'm giving the example. He eats a mango. All right, then which one is the subject here? This one is your subject. Okay, subject means what, doer, the person who is doing the action here, who is doing the activity of eating, then he. Okay, then he will be your subject. All right, and eats, this is your verb. This is what, this is your verb. And here you can see eats, we have added s to the word eat. Eat में हमने s add कर दिया है to make it singular. All right, then we have used here he eats a mango. Fine, because जो subject है यहाँ, that is your singular. Singular means what, it means only one person will be there. Fine, he, it means here it is indicating the one person. All right, that's why it is singular. Fine, okay. And some more example. For example, जहाँ हम es ऐड करते हो. Okay, for example, oh sorry, let me remove it. Yeah, we have done. For example, he goes to the market. Now if it's she, you can write she goes to the market. Here you can see which one is the subject here, that is she. Okay, this is a subject, that is a singular subject because only one person is there, only one girl is there. Okay, and we have used here the verb goes. We have added es to the word go. हमने go में क्या ऐड कर दिया बच्चे, हमने es ऐड कर दिया. मैंने बता रखा आपको, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको क्या करना है, यू हैव टू यूज द सिंगुलर वर्ब. आपको वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज़ करना है, एंड सिंगुलर वर्ब में हमेशा एस या ई एस लगा होता है. ओके, फाइन. एंड देन कुछ में, जैसे कि अभी से पहले मैंने एग्जांपल दिया ईट, तो ईट में हमने ओनली एस ऐड किया था. राइट, बट आप देख सकते हो यहाँ गोज में हमने क्या ऐड किया है, वी हैव एडेड ई एस. सिर्फ एस नहीं ऐड किया हमने, वी हैव एडेड ई एस. राइट, जी ओ ई एस, जी ओ गो, गो मीन्स जाना, बट यहाँ हमने ई एस ऐड कर दिया है. दिस इज योर वर्ब. ओके, ये आपका वर्ब है. तो यहाँ आप देख सकते हो, आप इसका मतलब आप समझ सकते हो कि किसी किसी वर्ब में एस ऐड किया जाता है एंड किसी किसी वर्ब में ई एस ऐड किया जाता है. ऑल राइट, सो शी गोज टू द मार्केट, तो हमने यहाँ ई एस ऐड किया है. फाइन, ओके. विद द सिंगुलर सब्जेक्ट वी हैव यूज सिंगुलर वर्ब. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने कौन सा वर्ब यूज़ किया, सिंगुलर यूज़ किया, ना कि प्लूरल. फाइन, प्लूरल वर्ब मीन्स
जो रूट फॉर्म होगा वर्ब का, जैसे गो, जो गो हो गो ही रह जाएगा, ईट ईट ही रह जाएगा, देयर विल बी नो चेंज। फाइन। नाउ इन दिस इज देयर इज अ सेकंड रूल दैट इज हाँ, दैट इज योर प्लूरल सब्जेक्ट विल टेक प्लूरल वर्ब। प्लूरल, PLURAL, प्लूरल subject, SUBJECT, subject will take plural verb। ओके, जैसे मैंने बोला सिंगुलर सब्जेक्ट क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। इन द सेम वे प्लूरल सब्जेक्ट क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। फाइन। प्लूरल सब्जेक्ट मीन्स व्हाट, इट मीन्स देर इज मोर देन वन पर्सन, वहाँ एक से ज़्यादा है। ओके, दैट देन इट इज प्लूरल। फाइन। एंड सब्जेक्ट में आपका वो नाउन भी हो सकता है एंड प्रोनाउन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, let me give you the example. she she is a singular subject and they, here they is your what, this is your plural subject ना, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। PU शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ, प्लूरल का शॉर्ट मैंने लिखा है SUBJ, सब्जेक्ट का प्लूरल SUBJ लिखा है मैंने। ओके, दे ईट अ मैंगो। ओके, यहाँ इससे पहले मैंने लिखा था शी ईट्स अ मैंगो, नाउ आई एम राइटिंग हियर दे ईट अ मैंगो। तो आप देखो, यहाँ मैंने इस नहीं ऐड किया, इस वर्ब में मैंने इस ऐड किया है नहीं, ये आपका वर्ब है और यहाँ मैंने ऐड नहीं किया। क्यों? बिकॉज दे इज और वॉट, दिस इज योर प्लूरल सब्जेक्ट, ये आपका क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। बच्चे, आई एम एक्सप्लेनिंग इन बोथ लैंग्वेजेस, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों को इंग्लिश समझ आती है, कुछ को नहीं आती, कुछ इंग्लिश में कंफर्टेबल होते हैं। दैट्स वाई आई एम यूजिंग बोथ लैंग्वेजेस। ऑल राइट, ओके। Then they is what, this is your plural subject. Why? Because here it is representing more than one person. They means what, वे लोग, तो वे लोग में क्या एक ही पर्सन होंगे, लोग जब हो रहा है इट मीन्स देयर आर मोर देन वन पर्सन, राइट। अब एक से ज़्यादा लोग हो गए तो वो क्या हो जाएगा, दैट सब्जेक्ट विल बी योर प्लूरल सब्जेक्ट। फाइन। एंड विद द प्लूरल सब्जेक्ट वी यूज़ प्लूरल वर्ब। अब प्लूरल वर्ब के लिए मैंने बताया था कि वो रूट फॉर्म रहेगा, मतलब कि ज्यों का त्यों रह जाएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, कोई SES हमें नहीं ऐड करना होगा। ठीक है, ओके। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, दे ईट ए मैंगो। फाइन, या अब आप बोलोगे मैम ये तो अपने प्रोनाउन का बोल दे दिया, अब नाउन का भी एग्जाम्पल दो। तो यू कैन सी, फॉर एग्जाम्पल, राम एंड सोहा, राम एंड सोहा, वी विल यूज ईट मैंगो। राम एंड सोहा ईट मैंगो। हमें यहाँ, अब आप बोलोगे सोहा के बाद ईट्स होना चाहिए, नो, हियर देयर आर टू पर्सन्स इन, नाउ द सब्जेक्ट इज व्हाट, दिस इज योर सब्जेक्ट, राम एंड सोहा, ये पूरा मिलकर आपका सब्जेक्ट हो रखा है। फाइन। एंड दिस इज योर प्लूरल सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ दो लोग हैं, राम भी है और एक सोहा भी है, देयर आर टू पर्सन, दैट्स व्हाई इट इज प्लूरल सब्जेक्ट। फाइन। अगर सिर्फ यहाँ पर राम होता या ओनली सोहा विल बी देयर, देन इट विल बी योर सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर सिर्फ राम होता तो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिर्फ सोहा होती देन सिंगुलर सब्जेक्ट होता। बट यहाँ दो पर्सन है, एंड लग गया है, एंड क्या कर रहा है, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। यहाँ यहाँ क्या कर दिया इसने, सब्जेक्ट को प्लूरल बना दिया है, तो सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, देन वी विल यूज द वर्ब आल्सो प्लूरल ना, विल आल्सो यूज द प्लूरल वर्ब, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड ईट नॉट ईट्स। गॉट इट, अंडरस्टूड? ओके। तो एंड नाउ वन मोर थिंग, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप लगाओगे अगेन हेल्पिंग वर्ब जो लगेंगे। हेल्पिंग वर्ब में आपके आते हैं इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव। ओके, दिस आर द हेल्पिंग वर्ब्स। मैंने इसके लिए भी एक वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हो, मैंने हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ाया है, या फिर पहले वाली जो बुक थी ना उसमें वर्ब्स इज, आर, एम थे। ओके, चैप्टर नंबर 6 इस तरह से कुछ होंगे ग्रामर के, मैंने डाल रखा है वीडियो यूट्यूब पर, आप उस पर भी देख सकते हो। ये मत सोचना कि मेरी बुक, हमारी बुक तो अब चेंज हो गई, वो देखना यूजलेस है, नहीं, आपको अगर समझना है तो आप देख सकते हो वीडियोस को। ओके, हेल्पिंग वर्ब्स आपके होते हैं बच्चे इज, एम, आर, हैज़, हैव। ओके, दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स। और अगर इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर तो आपके जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो सिंगुलर आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इज, ये आप कहाँ यूज़ करोगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर का मैंने शॉर्ट लिखा है SING। ओके, सब्जेक्ट का SUB शॉर्ट मैंने लिखा है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाओगे आप, इज लगाओगे, आर नहीं लगाओगे, क्योंकि आर जो है ना वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जाएगा। ओके, इज आप लगाओगे एंड देन हैज़ लगाओगे। फाइन। एंड विद द प्लूरल सब्जेक्ट, ये क्लियर है? नाउ लेट मी रेज इट। एंड प्लूरल सब्जेक्ट, विद द प्लूरल सब्जेक्ट you will use
You will use what? You will use are। हाँ, एंड वॉज वर्ग की बात है अगर, तो आप वर यूज़ करोगे। एंड सिंगुलर के साथ वॉज यूज़ करना। मैं वहाँ लिखना भूल गई थी, वॉज हो जाएगा पहले वाले में, बट प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर हो जाएगा, WERE। जैसे WERE वर और हैव। ओके, HAV अब ये लगेंगे इनके साथ। फाइन, ये हेल्पिंग वर्ब्स इसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जाएगा। एंड इज, वॉज एंड हैज़ वो जाएगा आपके सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। फाइन, ओके। अब आप बोलोगे मैम एम का तो आपने डिस्कस ही नहीं किया। तो बच्चे, एम विल बी ऑलवेज यूज विद द सब्जेक्ट आई विल ऑलवेज टेक एम। आई के साथ हमेशा एम लगेगा। एंड वन मोर थिंग, आई हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। ओके, जैसे कि हैव, ये क्या ले लेगा? हैव लेगा। एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट हैड, तो हैड ना सबके साथ जाता है। ओके, आइदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, इट डजेंट मैटर। सब जो, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो भी हैड लगेगा, एंड सब्जेक्ट प्लूरल है तो भी हैड लगेगा। ये याद रखना आप। ओके, हाँ। देन आई के साथ हमेशा क्या लगता है आपका? एम जाएगा एंड हैव जाता है। ऑलराइट, हाँ। एंड वॉज वर्ग की बात की जाए तो उसके साथ आई वॉज हो जाता है। यहाँ पर फिर चेंज हो जाती है, वॉज हो जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट ले लेता है, सिंगुलर वर्ब ले लेता है ये। ओके, तो दिस इज द एक्सेप्शन। आई जो है ना वो एक्सेप्शन है, जस्ट कीप इन योर माइंड। अब छोटे बच्चे हो, बस इतना आप याद रखो। फाइन, सो दीज आर द रूल्स जो हमें फॉलो करने होते हैं टू फ्रेम अ सेंटेंस। जब हमें सेंटेंस बनाना होता है देन वी हैव टू फॉलो दिस रूल्स। फाइन, if you want to know the rules then your grammar will be not be your grammar will not be improved। तो आप ग्रामर सीख भी नहीं पाओगे, you won't be able to learn grammar। all right, okay, now moving to the next page। जस्ट आई हैव टोल्ड यू कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप क्या लगाओगे? इज लगाओगे, वॉज लगाओगे, हैज लगाओगे, राइट। एंड इफ यू आर यूजिंग इज देन वर्ब विल टेक ING। इज के साथ बच्चे हमेशा क्या लगा दोगे आप? ING ऐड कर दोगे वर्ब में। फॉर एग्जाम्पल, ही इज थ्रोइंग द बॉल। ओके, एंड वर्ब में कोई चेंजेस नहीं है, सब में जो सिंगुलर में यूज़ हो रहा है वही प्लूरल में भी यूज़ होगा। जैसे कि अगर इफ़ इट इज़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, ही इज थ्रोइंग अ बॉल, एंड इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल इट मीन्स दे, तो दे के साथ वर्ब तो चेंज होगा, वर्ब सिर्फ डिफर होगा, बट जो आपका जो आई मीन सॉरी हेल्पिंग वर्ब डिफर होगा, मेन वर्ब नहीं। हाँ, वन मोर थिंग लेट मी टेल यू, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, जो मेन वर्ब होते हैं ना, मेन वर्ब वो आपके हो जाएंगे जैसे कि जो भी एक्टिविटी हुई, जो भी एक्शन वर्ड है ना, दैट विल बी योर मेन वर्ब। ओके, एक्शन वर्ड्स विल बी योर मेन वर्ब। ऑलराइट, और हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं, देखो मैं इसे रेज कर रही हूँ अब। हेल्पिंग वर्ब्स में मैंने आपको बताया इज, एम, आर वाले, ठीक है, वो मेन वर्ब हो गए। जो एक्शन वर्ड जैसे ईट, डांस, स्पीक, ये सारे आपके मेन वर्ब हो गए। हेल्पिंग वर्ब्स में आपके आते हैं इज, आर, am, has, have, had, was, were, can. These are the helping verbs. Fine? Okay. So is it clear? Fine? Okay. See, he के साथ हमने यहाँ लगाया है helping verb, क्या लगा यहाँ? He is throwing. He is throwing the ball high while playing. All right. Subject is जो singular, he singular है, उसके साथ हमने क्या लगाया? Singular helping verb लगाया, that is is लगाया। बट जो मेन वर्ब है उसमें हमने ऐड कर दिया है ING, बिकॉज इज़ के साथ हमेशा ING लगता है बच्चे। इज़ के बाद जो भी मेन वर्ब आएगा आप उसमें ING ऐड करोगे। एंड इफ़ द सब्जेक्ट इज़ प्लूरल, दे, अब ये इसी में आपको क्या करना है? बस सब्जेक्ट चेंज करना है। तो आप क्या करोगे? यू विल राइट दे आर, हेल्पिंग वर्ब बस चेंज करोगे, बाकी सब कुछ सेम लिख दोगे। दे आर थ्रोइंग, हेल्पिंग वे मेन वर्ब जो यहाँ है वही रह जाएगा। दे आर थ्रोइंग द बॉल हाई वाइल प्लेइंग। मैं फर्स्ट वाले एग्जाम्पल को करके दिखा रही हूँ प्लूरल में चेंज करके। Okay, got it? Okay. Now come to the exercise, that is question number A. Check the correct option to complete the following sentences. See, there are two options given and you have to pick the appropriate one, which is the suitable one, which is the correct one. ठीक है, जो सही है आप उस पर टिक करोगे, जो सेंटेंस को सही, जो सेंटेंस को मीनिंगफुल बना दे। मीता blank karate from an expert coach. Mita is what? This is a singular subject or plural subject? Mita is only one person, na? Here it is only one girl. There is only one girl, that's why it is a singular subject. And singular subject will take singular verb. And in singular verb we add s and es, right? तो आप कौन सा टिक करोगे? Learns. Mita learns. Fine. See, come to the next one. They is what? That is your plural subject, है ना? They आपका plural subject है, and plural subject के साथ हम use करते हैं root form.
बच्चे रूट फॉर्म किसे बोलते हैं, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, रूट फॉर्म बोलते हैं वैसे वर्ब को जिसमें कोई चेंजेस ना हो, जैसे गो, ईट, ड्रिंक, डांस, स्पीक, सारे ऐसे ही हो जाएंगे, टीच। ओके। और अगर और मतलब अगर इसी, और हमें जब इसको सिंगुलर बनाना होता है तो हम इसी रूट फॉर्म वाले वर्ब में क्या करते हैं, एस ई एस ऐड करते हैं, जिसमें कुछ भी ऐड नहीं किया गया हो, एस ई एस आई एन जी कुछ भी नहीं ऐड किया हो गया हो, दैट इज अ रूट फॉर्म। ओके, क्लियर है दिस वर्ड? ओके, there is a plural subject, so we will use the plural verb, it means lack. Fine. Okay. थर्ड वन, आई। आई के साथ मैंने बताया ना आपको ये प्लूरल लेता है, ये याद रखना, दिस इज द एक्सेप्शन। तो आप यहाँ करोगे आई लाइक्स नहीं करोगे, क्या करोगे, आई लाइक दिस पीपल सेड द फिलोसफर। फोर्थ वन, ट्रैफिक पुलिस मेन, here is written main not man. If there will be man then it will be your singular subject, but here it is written main, it means the subject is plural, then you will use control not controls, आप plural verb use करोगे control। वी के साथ हमेशा क्या लगाओगे, आप आर लगाओगे, बिकॉज दिस इज योर प्लूरल सब्जेक्ट। द फिलोसफर एक्सप्लेन्ड टू द स्ट्रेंजर व्हाट अ काउ इज, काउज नहीं लगा है, काउ में एस नहीं लगा है, दैट्स वाई इट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर एस लगा होता तो वो आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता, काउ है, ओनली काउ, देन यू विल यूज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। इन द सेवंथ वन, आई के साथ हमेशा एम लगता है, आपको पता ही चीज़ मैंने बोल रखा है। ही के साथ हैज़ लगाओगे, मैंने बताया ना सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ लगाते हैं, और हैव जाता है प्लूरल के साथ। दे के साथ आर लगेगा, राइट, दे क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, सो यू विल यूज द प्लूरल हेल्पिंग वर्ब दैट इज आर नॉट इज। वी, वी इज योर सिंगुलर सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट, सो यू विल राइट हैव। फाइन, ओके, डन। If you want to do it, just pause the video or you can take the screenshot also. All right. Okay. Now move to the next one. Now we are having the topic transitive and intransitive verbs. Let me explain you in short. बस हल्के में समझ लो, छोटे में समझ लो। Transitive means as a sentence which is having object. Okay, fine. Okay. Transitive verbs means those verbs that have object, जिनके पास object भी हो. And in intransitive verbs it means those verbs which don't have any object, इनके पास ऑब्जेक्ट ना हो। अब ऑब्जेक्ट मीन्स द थिंग्स, नहीं थिंग की बात नहीं किया जा रहा है। ओके, ऑब्जेक्ट मीन्स फॉर एग्जांपल शी ईट्स अ मैंगो, तो मैंगो इज योर सब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट, क्या मैं बोली जा रही हूँ आज। शी ईट्स अ मैंगो, शी इज योर subject, eats is your verb, and mango is your object. Fine. Then see, she eats, sorry, eats मैंगो, क्या नाम लिख दिया मैंने, एम को कैसे, क्या क्या मेरे साथ आज हो रहा है, गॉड नोज। शी ईट्स मैंगो, ओके ओके, देन सी हियर दिस इज योर सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट कहलाएगा, ईट्स विल बी योर व्हाट, वर्ब कहलाएगा, एंड जो मैंगो है ना दैट विल बी योर ऑब्जेक्ट। इट मीन्स जो जवाब दे रहे दे द विच इज गिविंग द आंसर ऑफ हु, व्हाट, विच, ओके, इस तरह के जो भी आंसर दे, हु, हुम और वाट के जो आंसर दे दैट विल बी योर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल शी ईट्स ए मैंगो, मैंने आपसे क्वेश्चन किया व्हाट इज शी ईटिंग, व्हाट डज शी ईट, वो क्या खाती है, यानी वह क्या खाती है, व्हाट का आंसर क्या मिल रहा है, मैंगो, आंसर में क्या मिल रहा है हमें, मैंगो, तो आपका वो जो आंसर मिला दैट विल बी योर ऑब्जेक्ट। फाइन, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। इनट्रांजिटिव में क्या होता है कि आपको इसमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। हाँ, वन मोर थिंग, अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो आपको वहाँ पर आपके दो दो ऑब्जेक्ट भी मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, श्रुति गेव मानव आ पेन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्वेश्चन किया जा रहा है, यहाँ अगर क्वेश्चन किया जाए आपसे इस एग्जाम्पल में दैट टू होम शी गेव, टू होम डिड शी गिव, किसे उसने दिया था पेन, तो योर आंसर विल बी मानव, किसे, मानव को। अगर फिर से आप क्वेश्चन करते हो, अगेन यू आर आस्किंग दैट व्हाट डिड शी गिव, उसने क्या दिया था, देन योर आंसर विल बी पेन। तो हुम एंड व्हाट, यहाँ हमें दो का आंसर मिल रहा है, इट मीन्स देर आर हैविंग टू ऑब्जेक्ट्स। फाइन, दैट इज योर मानव एंड व्हाट, ये आपके हो गए, मानव एक हो गया और एक आपका पेन हो गया, ये ऑब्जेक्ट वन कह सकते हो, ये ऑब्जेक्ट टू कह सकते हो। फाइन, ओके, क्लियर। नाउ सी, इनट्रांजिटिव में आपके ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल
रीता sang sweetly. Sweetly जो adverb जिसमें ly लगा, that is your adverb. Sweetly. Fine. For example, if someone is asking, what did Rita sing? रीता ने क्या गाया था? Are you having your answer? नहीं. आपके पास आंसर कैसा है? हाउ का आंसर है. उसने कैसा गाया था? देन आप बोलोगे स्वीटली. बट मैंने आपको बताया था हु, वाट एंड हुम का आंसर मिलना चाहिए. बस इन तीन का मिलना चाहिए. इनके अलावा वाई, हाउ, इस इन सब का नहीं मिलना चाहिए. फाइन. वेन, ये सब का नहीं. बस हु का आंसर, वाट का आंसर एंड हुम का आंसर. ठीक है. कौन, क्या एंड किसे. तो यहाँ हाउ का आंसर मिल रहा है, मीन्स यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है. स्वीटली ये एडवर्ब हो जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट नहीं है. फाइन. अब देखो आप, रीता सैंग. हाँ, और ऐसा नहीं है कि कोई अगर सैंग के साथ है ना ऑब्जेक्ट आएगा नहीं, आएगा. नेक्स्ट एग्जांपल देखो आप, रीता सैंग अ सॉन्ग स्वीटली. अगेन अब नाउ यू आर आस्किंग हियर व्हाट डिड रीता सिंग. उसने क्या गाया था, तो आप बोलते हो सॉन्ग गाया था. ठीक है. प्रेयर नहीं गाया था, भजन नहीं गाया था, उसने क्या गाया, सॉन्ग गाया. तो जो सॉन्ग हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा. इट मीन्स आपसे यहाँ आप क्लियर हो कि वर्ब कभी वो ऑब्जेक्ट ले भी सकता है, ना भी ले सकता है. ठीक है. इट मैटर्स ऑन हिम, इट डिपेंड्स ऑन हिम. ओके. तो ये हो गया आपके. नाउ कम टू द एक्सरसाइज. अंडरलाइन द वर्ब इन ईच सेंटेंस एंड राइट टी फॉर ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड आई एन फॉर इनट्रांजिटिव. जो आपका ट्रांजिटिव वर्ब्स है आप उसके आगे टी लिखोगे और इनट्रांजिटिव के आगे आई एन लिखोगे. द स्ट्रेंजर लुक्ड सरप्राइज्ड. नाउ अब यहाँ से पूछा जाए कि स्ट्रेंजर ने क्या देखा, किसे देखा एंड क्या किस कौन देखा. तो क्या आपके पास आंसर है कि हाँ उसने क्या देखा. नहीं है ना. यहाँ यू आर नॉट गेटिंग द आंसर. तो आपका ये क्या हो जाएगा, इन ट्रांजिटिव. लेट मी राइट. देन आप यहाँ लिखोगे आई एन. क्यों नहीं लिखा रहा है. हाँ, आई एन, इन. ठीक है. फर्स्ट वाले में आप क्या करोगे, आई एन इन कर लोगे. गॉट इट. ओके. नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन. बर्ड्स आर फ्लाइंग. आर यू गेटिंग हियर द ऑब्जेक्ट. क्या यहाँ आपके पास ऑब्जेक्ट है. नहीं ना. नहीं. तो हाँ, और हमें यहाँ अंडरलाइन भी करना है वर्ब को. सॉरी, मैंने फर्स्ट वाले में किया ही नहीं. तो यहाँ इन द फर्स्ट वन लुक्ड इज योर वर्ब, तो आप इसे अंडरलाइन कर देना. और ये मैंने यहाँ पे बेटा लिखा है आई एन, आप लोग बॉक्स में लिखना. ठीक है. अगर मैं उधर लिखूंगी ना तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं कहा. मैंने सामने सामने लिखने की कोशिश की है. फाइन. बर्ड्स आर फ्लाइंग. अगेन यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बट यहाँ वर्ब है. ठीक है. देन अगेन इट विल बी योर आई एन, मतलब इन ट्रांजिटिव. फाइन. ओके. थर्ड में द काउज वर ग्रेजिंग इन द मीडो. देन आपका यहाँ वर्ब क्या है, दैट इज वर ग्रेजिंग. फाइन. ये आपके वर्ब हो जाएंगे. अगेन यहाँ आपको कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा, तो यहाँ आप कर दोगे आई एन इन. फोर्थ में आप आ जाओ. हेयर द चिल्ड्रन स्लेप्ट वेल. यहाँ वेल क्या हो जाएगा, आपका एडवर्ब हो जाएगा. यहाँ ऑब्जेक्ट फिर से नहीं मिल रहा है. स्लेप्ट आपका वर्ब हो गया, इसे अंडरलाइन कर दो आप. और इसमें फिर से कर लो आई एन इन ट्रांजिटिव. ओके. द स्ट्रेंजर लाइक द ट्रीज. क्या उसने लाइक किया, ट्रीज लाइक किया. तो लाइक आपका हो गया वर्ब. ठीक है. सब अंडरलाइन कर लो. ट्रीज हो गया आपका ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा आपका ट्रांजिटिव. बस फिफ्थ वाले में आपका टी लिखा रहा है, बाकी में सब में ऊपर से आप आई एन कर लेना. ओके. सिक्स में आ जाओ. ईगल्स सोर हाई. ईगल्स सोर, सोर इज अ वर्ब. हाई यहाँ भी आपकी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये भी आपका हो गया आई एन इन. गॉट इट. नाउ इन द नेक्स्ट वन, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द हाउस. इज फ्लाइंग ये आपका वर्ब हो गया. अगेन यू आर नॉट गेटिंग द ऑब्जेक्ट, सो अगेन इट विल बी योर आई एन इन ट्रांजिटिव. फाइन. इन द नेक्स्ट वन, चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क. तो प्ले इज व्हाट, दैट इज योर प्ले में आप कर दो अंडरलाइन. एंड हेयर अगेन यू आर नॉट गेटिंग द ऑब्जेक्ट, सो इट विल बी आई एन इन. एट में भी आपके हो जाएंगे आई एन इन. ओके. बेटा ये विजिबल नहीं है, बट आप अपनी बुक में देख लेना. ओके. क्योंकि मैं आगे बढ़ूंगी ना तो ये इरेज सारे इरेज हो जाएंगे. मुझे इरेज करना पड़ेगा तब मैं आगे बढ़ सकती हूँ. ठीक है. नौ नाइन्थ में आप आ जाओ. जब नाइन्थ में आऊँगी तो ये सारे इरेज हो जाएंगे, इसलिए आप वीडियो को पॉज कर लो, आप इसे कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो आप. ओके. या फिर अगर आगे हो जाए तो आप पीछे भी वीडियो कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि वीडियो भी पीछे नहीं होते. ओके. अगर नहीं आता आप अपने पेरेंट्स से पूछ लेना. नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज नाइन्थ वन. नाइन्थ में हम आ जाएंगे. रीमा इज डांसिंग. तो देन डांसिंग इज योर वर्ब. एंड अगेन दिस इज योर व्हाट, दिस इज इन ट्रांजिटिव, बिकॉज अगेन यू आर नॉट गेटिंग द
ऑब्जेक्ट, ओके। तो आप यहाँ लिख दो IN। 10 में आई गेव अ पेन एज अ गिफ्ट टू माई फ्रेंड। तो हेयर गेव इज योर वॉट, दैट इज योर वर्ब, ओके। गिव आपका ये वर्ब हो गया। और ये आपका, अगर आप यहाँ ऑब्जेक्ट है आपके पास, क्या दिया, गिफ्ट दिया, किसे दिया, फ्रेंड को दिया। है टू ऑब्जेक्ट्स ना, तो ये आपका तो पक्का होने वाला ट्रांजिटिव। गॉट इट। अब आप देखो, मोहन इज प्लेइंग, क्या खेल रहा है, कुछ यू आर नॉट गेटिंग द आंसर। तो इस प्लेइंग को अंडरलाइन कर देना एंड यू इट विल बी इन ट्रांजिटिव बिकॉज नो ऑब्जेक्ट इज देयर। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव इज योर वर्ब। क्या चाहिए, क्या यहाँ मांगा जा रहा है। Here it is given the answer of what, then water, it will be a transitive. Fine, okay, you have done this one. Now move to the next one. Now we are in the spell well, okay. See, first में क्या होगा, मैं ना नंबरिंग कर दे रही हूँ ऊपर, ठीक है। फर्स्ट वन आप यू विल फील डिसेंट, जो डिसेंट है ये आपका फर्स्ट में आ जाएगा, ओके। एंड द सेकंड वन इट विल बी मीडो, एम लिखा है, बाकी जो भी मिसिंग लेटर्स हैं आपको वहाँ फिल करना है। हाँ, जो भी मिसिंग लेटर्स है बच्चे, आपको इस वाले ब्लैंक में फिल करना है, क्या बन सकता है आपको ढूंढना है इस हेल्प बॉक्स से। तो फर्स्ट वाले में डिसेंट बन रहा है एंड सेकंड वाले में मीडो बन रहा है। थर्ड में आपके फिलोसफर हो जाएंगे, ओके। फोर्थ आपका हो जाएगा साइंटिफिक एंड फिफ्थ आपका हो जाएगा न्यूट्रिशियस, ओके। और सिक्स आपका हो जाएगा स्कार्सली। गॉट इट। अब आप इसे यहाँ फिल कर लो, इन जो भी ब्लैंक्स दिए गए उसमें। ऑल राइट, ओके। मूव टू द नेक्स्ट वन। Find 9 verbs from the word greet and add ing to them. Also write them in the space provided. आपको यहाँ करना क्या है, आपको वर्ब्स ढूंढना, वो भी 9 वर्ब्स ढूंढने, फाइन। और उसको क्या करना है, आपको उसमें ing ऐड करके यहाँ इस ब्लैंक में लिखना है, ठीक है। इस स्पेस में लिखना है। तो आप यहाँ फाइंड करो, देखो फाइंड करने से भी यहाँ फाइंड मिल गया एक वर्ड। फाइंड खुद यहाँ एक वर्ड हो जा रहा है, इससे मुझे ऊपर करने दो आप। फाइंड, ये एक आपका हो गया, ओके, सॉरी, एक हो गया आपका। एंड दूसरा आपका हो रहा है रिसीव, सेकंड लाइन में आप आ जाओ, देखो ये रहा पर रिसीव हो गया। फिर आपका है ढूंढो आप, मैं तो ढूंढ ही रही हूँ। हाँ, डिसेंट, डिसेंट, ओके। इसमें बन जाएगा डिसेंडिंग, बन जाएगा, आप ing ऐड करोगे। फिर आपका यहाँ हो रहा है इस लाइन में एडमायर, ओके। फिर आपका हो रहा है नेक्स्ट लाइन में, क्या मिल रहा है हमें, हाँ यहाँ देखो आप, सेल, SELL सेल, ऑल राइट, हाँ। एंड देन यहाँ आपको मिल जा रहा है सैल्यूट। देन फिर क्या है, या मार्च, यू गॉट मार्च, मार्च में आप लगा दोगे तो ing मार्चिंग हो जाएगा। देन हम इसमें हमें मिल रहा है परचेज, राइट। एंड देन इन द लास्ट हमें यहाँ मिल रहा है स्केच। 9 हो गए हमारे। अब यहाँ जो लिखोगे आप उसे क्या करोगे, ing लगा कर लिखोगे, ऐड करोगे। तो आप यहाँ लिख लेना FIN, फाइंड में क्या लग जाएगा, ing, ये बन जाएगा फाइंडिंग। रिसीव RECEIVING, ई लास्ट वाला हट जाएगा, ओके। थर्ड में डिसेंड है तो DESCENDING, डिसेंडिंग हो जाएगा, फाइन। द फोर्थ वन एडमायर, इट इज गिवन, देन इट विल बी एडमायरिंग, ADMI। अगर क्लियर नहीं है तो आप मेरी वॉइस सुनना, मैं क्या डिक्टेट कर रही हूँ, ADMIRING, दिस इज योर आई, ओके। मैं इसे इरेज करूँ बाकी को लिखने के लिए, ओके। फोर्थ तक हमने कर लिया है, या फोर्थ तक कर लिया। फिफ्थ में आपके हैं अच्छा पीछे चले जाना, मैं आपको, आप पीछे वीडियो को पॉज करके देख लेना, ठीक है। एंड देन हमने थर्ड फोर्थ तक किया ना एडमायरिंग, एंड देन फिफ्थ में आपके हो जाएंगे सेल है तो सेलिंग, SELLING, सेलिंग, ओके। सिक्स में आपके सैल्यूट है तो सैल्यूटिंग, SALUT, हट जाएंगे यहाँ से, सैल्यूटिंग हो जाएंगे आपके। सेवेंथ में आपके हो जाएंगे मार्च से मार्चिंग, MARCHING, मार्चिंग। नाउ अब आप आ जाओ 8 में, 8, मैं 8 यहाँ लिख दे रही हूँ, इधर स्पेस नहीं है, ओके। आई डोंट हैव स्पेस है, दैट्स आई एम राइटिंग हियर। यूजुअली परचेज से परचेजिंग, ये मुझे रेज करने दो, ये वर्ड बड़ा है, ओके। 8 में आप कर लोगे PURCHASING, परचेजिंग, फाइन। एंड द नाइन्थ वन स्केच है, देन इट विल बी स्केचिंग, SKETCHING, स्केचिंग, डन।
Now finally we have done this one. Okay, now move to the next one. आपको अगर आप अगर पीछे वाला छूट गया आपसे, तो आप वीडियो को पीछे करो आप एंड वहाँ पर पॉज़ कर लेना, ठीक है? और अगर मेरी राइटिंग क्लियर नहीं है क्योंकि स्क्रीन पर लिखना मुश्किल है, तो आप मेरी वॉइस को सुनना। मैं जो बोल रही हूँ, डिक्टेट कर रही हूँ, आप उसे सुनना, ठीक है? ओके। हुँ। These two activities which you will do in your classroom. This is a classroom activity. Now tell to your English teacher. They will do it. They will make you do it. Okay. Now we are here. Speak and express. Okay. Look at the given picture and describe all that you can see. Tell your partner the details that you can observe. Here again it is a activity. See, look at the picture. आपको picture देखना और आप क्या क्या इसमें observe कर रहे हो. Whatever you are observing here, just speak it to the partner, to your partner. Okay. आपके जो टीचर है ना, वो आपके टीचर आपको पार्टनर देंगे, क्लासरूम एक्टिविटी होगी जिसमें आपको पार्टनर बनाया जाएगा एंड देन आपको इसके बारे में उससे आपको डिस्कस करनी है, आपको बतानी है। एंड आपके जो पार्टनर है वो आपको कुछ पॉइंट्स देंगे, जैसे आपको यहाँ क्या दिख रहा है, क्राउडिंग दिख रही है, पॉल्यूशन आप बोल सकते हो। तो आप इन सारे को ना सेंटेंस में बोलना है आपको, आपको लिखना नहीं है, यहाँ बोलना है। फाइन। ओके। तो ये जो भी है स्पीकिंग एक्टिविटी है, स्पीक एंड एक्सप्रेस लिख रखा है, ऐसे भी स्पीक मीन्स बोलना है। तो वीडियो में आप लोग तो बोल नहीं पाओगे, मैं ही बोलूँगी। एंड ये आप लोगों की एक्टिविटी है, तो आप अपने टीचर को बोल देना, ठीक है? ओके। ये भी आपकी जो है प्रोनाउंसिएशन वाली एक्टिविटी आपके क्लास टीचर, आई मीन इंग्लिश टीचर आपको करवाएंगे, नॉट क्लास टीचर। ओके, जो भी वर्ड, whoever is your English teacher, they will make you do it. Now punctuation. Punctuation means what? हम अगर जो भी हम सेंटेंस बनाने से पहले हम जो यूज़ करते हैं कैपिटल लेटर, दैट इज़ योर पंक्चुएशन, वो भी होता है पंक्चुएशन। एंड देन वी यूज़ सम पंक्चुएशन मार्क्स सच एज फुल स्टॉप, कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, जो भी है ये सारे क्या हो जाएंगे आपके पंक्चुएशन मार्क्स में आ जाते हैं। ओके। एंड किसी भी सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए हमें ये पंक्चुएशन यूज़ करना होता है बच्चे। फाइन। देखो आप यहाँ पंक्चुएशन में यहाँ आपको अपोस्ट्रोफी के लिए बताई गई है। अपोस्ट्रोफी हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को उसकी बिलोंगिंग शो करने के लिए। अगर किसी की कोई चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बुक है, तो आप क्या बोलोगे, दिस इज़ माय बुक। फॉर एग्जांपल योर नेम इज़, फॉर एग्जांपल मेरा ही एग्जांपल ले लो आप, जैसे मेरा नाम क्या है, फरहत, और ये मेरी बुक है। व्हाट विल आई से, फरहत्स बुक। आप क्या बोलोगे, फरहत्स बुक या फरहत, फरहत मैम्स बुक, इस तरह से बोलोगे, राइट? तो आप यहाँ क्या दिखा रहे हो कि ये मेरी बुक है, मतलब कि आप यहाँ बिलोंगिंग शो करें किसकी है, हुज इट इज़, इट बिलोंग्स टू होम, किससे बिलोंग कर रहा है ये जो भी ऑब्जेक्ट है या थिंग है, ठीक है? और यहाँ जो भी अपोस्ट्रोफी लगाते हैं हम हमेशा लिविंग थिंग के साथ लगाते हैं, जस्ट कीप इन योर माइंड। ओके। सी, रोहन्स फुटबॉल, इट मीन्स ये फुटबॉल किसका है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर आपको मीनिंग जाननी है देन इट विल बी फुटबॉल ऑफ रोहन। इट मीन्स फुटबॉल ऑफ रोहन। रोहन फुटबॉल मीन्स क्या होता है, इसका मतलब क्या हो रहा है, फुटबॉल ऑफ रोहन। रियाज ड्रेस, इसका मतलब हुआ ड्रेस ऑफ रिया, रिया का ड्रेस, रोहन का फुटबॉल, राइट? इट्स मीनिंग is given. Now, yeah, we are in the question number A. Yeah, come to the question number A. Oh, let me erase it. Yeah. Question number A. Place the apostrophe in the correct places in the sentence. अब आपको यहाँ apostrophe यूज़ करनी है, फाइन। और आपको apostrophe कहाँ यूज़ करनी होती है, लिविंग थिंग के साथ। और उसके बाद आप जो पोजीशन दिखाते हो, ठीक है, तो वहाँ पर देखना आप किस चीज़ के बारे में बता रहे हो, आप क्या किस चीज़ का किससे बिलोंग करता है। जैसे फर्स्ट वन इज गिवन, रोहन्स फादर वर्क्स इन अ म्यूजियम। ये फादर किसके हैं, रोहन के है, इट मीन्स फादर ऑफ रोहन, राइट? देन हेयर वी विल यूज द अपोस्ट्रोफी टू द व्हाट, टू रोहन, ना कि फादर पे। किसके, हुज, देन रोहन के ना, जिसके है, जिसके बारे में बताया जा रहा है, आप उस पे उसके साथ यूज़ करोगे अपोस्ट्रोफी। देन आप यहाँ लिख दोगे, यू विल री राइट इट, ठीक है? आपको फिर से पूरा सेंटेंस लिखना है अपनी नोटबुक में। मैं बस जहाँ पर करेक्शन करनी मैं वहाँ बता रही हूँ, ठीक है? मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिख रही हूँ बच्चे, बिकॉज आई डोंट हैव दैट मच स्पेस है, दैट्स वाई। फाइन। देन आप इसे क्या करोगे, इस वाले को क्या चेंज करके लिखोगे, ROHAN अपोस्ट्रॉफी S। बाकी पूरे सेंटेंस को एज इट इज़ उतार दोगे आप, यू विल राइट द होल सेंटेंस एज इट इज़। फाइन। इट वॉज माई फ्रेंड रियाज बर्थडे yesterday। हुज बर्थडे, रियाज बर्थडे मीन्स बर्थडे ऑफ रिया। तो यहाँ अगेन आप यू विल चेंज करोगे, यू विल चेंज RIA अपोस्ट्रॉफी S, इट इज़ AI, ठीक है, रियाज, गॉट इट?
Okay, now move to the next one. In the third one, he apostrophe he is not going to for a picnic. And again you will use here he is को आप क्या करोगे, you will use he apostrophe, wait wait, yeah, you will write he apostrophe s. इट मीन्स आप देयर इज़ अ वीडियो ऑफ शॉर्ट फॉर्म, मैंने अपने यूट्यूब पर बना रखा है शॉर्ट फॉर्म का एक वीडियो, आप उसमें देख लेना। ही इज़ को शॉर्ट में हम लिखते हैं ही अपोस्ट्रॉफी एस, ही हैज़ को भी हम सेम लिखते हैं ही अपोस्ट्रॉफी एस। ऑलराइट, सो जस्ट वॉच द वीडियो, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, यू शुड वॉच इट। शॉर्ट फॉर्म है, पुरानी वाली बुक का है। ओके, जो भी क्लास का है आप देख लेना, आपके नॉलेज के लिए। आपको ये नहीं देखना कि मेरी बुक नहीं है, मेरे क्लास की नहीं है, आपको ये नहीं देखना चाहिए। ओके, ऐसे मैं आपको ना ऊपर एक आइकन शो कर दूंगी, ऊपर में आपको ब्लिंक करेंगे शॉर्ट फॉर्म्स, आप उस पर क्लिक भी कर सकते हो इस वीडियो के ऊपर में। गॉट इट? ओके, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी इनके लिंक इस चैनल पे जाने के लिए, आई मीन सॉरी, इस वीडियो पर जाने के लिए। नाउ देयर इज़ नो डिसिप्लिन इन दैट स्कूल, अगर देयर इज़, अगेन देयर इज़ को आप क्या लिखोगे, देयर apostrophe and then s. Okay, it will be there is. Done? Yeah, we have done it. Now moving to the next one, let me raise it. Yeah, right well. Here, see question number A in the right well. Imagine you were the stranger in the story and you had a wonderful trip. Add appropriate words of your own and complete the following sentences. सपोज करना है कि आप ही वो स्ट्रेंजर थे, आप ही वो एलियन थे, ठीक है, और आप ना क्या, और आपके पास बड़ा ही वंडरफुल ट्रिप रहा है ये, तो आप क्या क्या इसमें कैसे कंप्लीट करोगे, क्या आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग क्या यहाँ फिल करना चाहोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई, देन आप यहाँ क्या लिखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई ब्लैंक अ फिलोसफर एट द प्लेस ऑफ डिसेंट। आई वॉट, आई मेट ना, इस स्टोरी में भी एलियन ने क्या किया था, स्ट्रेंजर ने क्या किया था, दैट मेट विथ अ फिलोसफर ना, देन यू विल राइट हियर मेट, देन you will write here met, met, met. In the next one you will write then we saw, 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 various things. In the third one you will write spoke, the philosopher spoke, SPOKE, spoke। बेटा मेरा वर्ड बाहर जा रहा है ब्लैंक से, आप ब्लैंक के अंदर लिखना। In the fourth one you will write we had lots of fun, HAD, had। In the fifth one I will visit the planet again, I, सॉरी, आई विल भी, सॉरी सॉरी, बाकी का आप देख लेना, यहाँ पे अभी इरेज करूँगी ना, इससे सारे इरेज हो जाएंगे, ठीक है, तो आप वीडियो को पीछे कर लेना। हियर यू राइट VISIT, विजिट। गॉट इट, विजिट द प्लानट अगेन एंड, कहाँ थे हम, हाँ, वी विल विजिट द, ओहो, वी विल विजिट द प्लानट, ये लिखा क्यों नहीं रहा, जस्ट वेट, या वी विल आई विल VISIT, visit the planet again and travel further, TRAVL, travel further, all right, VISIT it is, okay, yeah, move to the next one, it is क्यों नहीं हो रहा, yeah, it is done। Complete the given flow chart by adding the necessary details। Here the flow chart is given, flow chart means what, आपको कुछ है ना, इस तरह से जो भी कोई भी अगर जैसे लंबी स्टोरी आप उसको शॉर्ट में बताना है, तो आप फ्लो चार्ट के थ्रू क्या कर सकते हो, स्टोरी को उसकी समरी दे सकते हो, ठीक है, उसे शॉर्ट फॉर्म में बता सकते हो। तो फ्लो चार्ट हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि उस चीज़ को शॉर्ट बना सके, फाइन, ओके। अ स्ट्रेंजर, सारी स्टोरी का यहाँ पर आप समरी कर दोगे थ्रू अ फ्लो चार्ट। देखो, अ स्ट्रेंजर फ्रॉम अ नाइबरिंग, व्हाट, फ्रॉम अ नाइबरिंग व्हाट, आपने बुक में पढ़ा है ना, व्हाट वाज रिटन देयर, प्लैनेट ना, देन आप यहाँ लिख दोगे नाइबरिंग प्लैनेट डिसेंड ऑन, स्पेस है, लिख पाओगे आप, मैं यहाँ पर लिख पाऊँगी, डिसेंड ऑन अर्थ, फर्स्ट वाले में आप लिखोगे, वेट, लेट मी ट्राई, यहाँ वाले में आप करोगे PLANET प्लैनेट, नेक्स्ट वाले में करोगे EARTH अर्थ, ओके, एंड देन ए ब्लैंक मेड द स्ट्रेंजर, हु मेड, देन फिलोसफर ना, देन हियर यू विल राइट PHILOSO, ओहो, PHER, फिलोसफर, राइट, सेकंड वाले में,
सेकंड वाले फ्लो चार्ट में, इस वाले में। थर्ड वन, दे वेंट थ्रू अ what? थ्रू अ वुड ना, एंड लुक्ड एट द वुड, डब्ल्यू डबल ओ डी, वेट वेट, डब्ल्यू डबल ओ है बच्चे, ठीक है, डब्ल्यू ओ आर मत पढ़ लेना आप लोग, ऐसा ना हो कि आपको वो कन्फ्यूज़न हो जाए। फाइन। फॉरेस्ट या फिर फॉरेस्ट भी लिख सकते हो, देव थ्रू अ फॉरेस्ट, वुड वहाँ लिखा था, तब मैंने यहाँ वुड लिखा है, डब्ल्यू डबल ओ डी, दिस डबल ओ। फाइन। हाँ, एट द वुड, सॉरी सॉरी, दे वेंट थ्रू अ वुड एंड लुक एट द ट्रीज ग्रोइंग देयर। यहाँ वाले में टी आर डबल ई एस, इतनी कम स्पेस है ना, मुझे प्रॉब्लम हो रही है लिखने में। ट्रीज, ओके। फोर्थ में हो जाएंगे, दे रीच्ड अ मीडो वेयर देवर काउस। काउस कहाँ थे? मीडो में ना, फील्ड में, एम ई ए डी डब्ल्यू ओ, मीडो। नाउ फ्रॉम हेयर यू विल कम टू हेयर, ओके। अब आप देखो, आप एरो को पकड़ना बेटा, जस्ट लुक एट द एरो, ऑब्जर्व द एरो। अब यहाँ आनी है आपको, दे रीच्ड, देर इज अ मीडो वेयर देयर वर काउज हो गए, एंड देन इसके बाद आप यहाँ होगी इस वाले में। द फिलोसफर एक्सप्लेन दैट द काउज वर ग्रैमिनिवोरस, GRAMINIVOROUS, ग्रैमिनिवोरस। क्लियर नहीं है तो बुक से भी अपने वर्ड सर्च कर सकते हो ग्रैमिनिवोरस के। ऑलराइट, ओके। नाउ इन द नेक्स्ट वन, अब आप देखो एरो ही इज गिवन हेयर इन दिस डायरेक्शन, देन कम टू दिस वन, द फिलोसफर एंड द स्ट्रेंजर। Here you will write the STRANGER, stranger. The philosopher and the stranger then reached a, where did they reach? City, है ना। उसके बाद कहाँ गए थे वो लोग? काउस से होने के बाद वो लोग गए थे सिटी, CITY सिटी, CI, दिस जो CITY सिटी। Okay, now let me raise, then it will be clear to you. This reached a city, the blank were full of the street. Here you will write STREET, street, were full of men and women. Men and the last में लिखोगे आप women, WOMEN. All right, okay. The philosopher explained that they were the ग्रेटेस्ट नेशन। पीपल को, सिटी में रहने वाले मैन एंड वीमेन को क्या कहा था उसने? दे आर द ग्रेटेस्ट नेशन ना, तो आप यहाँ लिख दोगे, लेट मी रेज ऑल द थिंग्स। आप वीडियो को पीछे करके लिख सकते हो, जहाँ पे मैं लिखवा रही हूँ वीडियो पॉज कर लिया करो बच्चे, ओके। अभी भी पॉज करके लिख सकते हो या फिर पीछे कर लेना वीडियो को, मैं इरेज कर रही हूँ। हेयर यू राइट, दे आर द ग्रेटेस्ट नेशन, दे आर द ग्रेटेस्ट, GREATEST, ग्रेटेस्ट नेशन, ओके, ठीक है। एंड देन द लास्ट वन यू विल राइट, द स्ट्रेंजर थॉट देम टू बी डर्टी, ओके, DIRTY, डर्टी। डन, so we have done this one also flow chart. All right, okay, now move to the next one. Dictionary skills, refer dictionary and find out the meanings of the following words. You have to सर्च दीज वर्ड्स इन द डिक्शनरी। आपको ताकि तभी आपको डिक्शनरी यूज़ करने आएगा बच्चा। आप डिक्शनरी में इन सारे वर्ड्स को ढूंढना एंड देन सर्च द मीनिंग। मैं तो बता सकती हूँ बट ये यू शुड डू इट बाई योर सेल्फ। ऑलराइट, ऐसे मैं ओरली बता देती हूँ, अगर आप सुन कर लिख सकते हो तो इट विल बी ग्रेट। सिंग मीन्स टू मेक म्यूजिकल साउंड्स विद द वॉइस, ओके। सिंग मतलब मैं लिख दूँ क्या? चलो दो ही मैं लिख ही देती हूँ, क्या करूँ, आप लोगों पर ना दिल आ जाता है, छोटे बच्चे हो, लिख ही देती हूँ भाई। टू मेक म्यूजिकल, MUSICL, म्यूजिकल साउंड्स, SOUNDS, साउंड्स, here it will be S, ओके। ये फर्स्ट वाले का लिख रही हूँ मैं, फाइन। ये फर्स्ट वाले का देखो, नीचे भी मैं जा रही हूँ, फिर इरेज कर दूँगी। साउंड्स विद द वॉइस, सिंग का मतलब क्या होता है? टू मेक्स म्यूजिकल साउंड विद द वॉइस, राइट, ओके। Now in the next one, hum, then it will be, this one will be the second one, to make a low or steady sound like that of a B, okay. To make a low and steady sound, डन। अब आप, लेकिन हाँ, ऐसा ना हो कि आप यहाँ से देख के छाप लेना, आप डिक्शनरी में भी सर्च करना, ओके। आप सिर्फ डिपेंडेंट मत रहा करो वीडियो पे, आपको खुद भी करना चाहिए, तभी आप सीख पाओगे so that you can learn ना, okay। now move to the next one,
पता है वीडियो बहुत लंबे हो रहे हैं, इसलिए मैं जल्दी से फटाक से सोच रही हूँ जल्दी से फिनिश करूँ, अगर अदरवाइज ये वीडियो ना लंबे हो जाएंगे। प्रोजेक्ट वर्क है जो भी विच यू हैव टू डन, डू इट इन योर ग्रुप। आपको ये ग्रुप में करना है विद अंडर द टीचर्स गाइडेंस, अपने टीचर के गाइडेंस के अंडर में करना है ग्रुप में। सारे बच्चे को वो करवाएंगे आपके इंग्लिश के टीचर। नाउ वैल्यूज़ एंड लाइफ स्किल्स इज गिवन। Okay, the whole universe is one family, shake of all narrowness, selfishness, limitations and wake up to work for the benefit of all। ये आपकी वैल्यू है कि जो हमारी होल जो यूनिवर्स है वो क्या है, हमारी एक फैमिली की तरह है। दिस वन फैमिली जिसमें हम लोग हर कोई रहते हैं। ओके, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी जो भी सेल्फिशनेस है, जो भी हमें लिमिटनेस है, जो भी है, हमें दूसरों के लिए सोचना चाहिए, हमें खुद के लिए नहीं सोचना चाहिए, सेल्फिश नहीं होना चाहिए। वी शुड केयर टू अदर आल्सो। ऑल राइट, ओके। सो नाउ बी में आप आ जाओ, मैं इसे भी करवा ही देती हूँ। इमेजिन दैट द स्कूल बस इज़ वेरी क्राउडेड ऑन योर वे बैक फ्रॉम स्कूल। You manage to get a seat, but your class partner is standing next to you in the bus. He happens to be sick. What will you do? Discuss the options given below in the class with your friends. सपोज करो आप बस से आ रहे हो, ठीक है, स्कूल की बस से, बड़ा ही गैदरिंग हो रखा है, क्राउड है बस पर, और आपका कोई पार्टनर है क्लास का, जो आपका कोई फ्रेंड है, वो क्या है, आपका क्लासमेट बीमार है और वो खड़ा है, उसे जगह नहीं मिल पाई, और लेकिन आप बैठे हुए हो। तो आपकी जो एथिक्स है, आपकी जो वैल्यूज़ है, वो क्या आपको कहेगी करने को? आपको यही करने को कहेगी ना कि आपको उठ जाना चाहिए और उसे बैठने देना चाहिए, बिकॉज ही इज़ इल, राइट। कोई अगर बीमार है तो पहले हम उसे सीट देंगे। अगर हम इफ़ वी आर फिट एंड फाइन देन वी शुड स्टैंड, हमें खड़े हो जाना चाहिए, है ना। हम तो फिट हैं भाई, हम ज़रूरी थोड़ी है बैठना, नेक्स्ट टाइम बैठ जाएंगे। कोई बीमार है तो हमें, या फिर कोई ओल्ड पीपल है तो आप पहले उसे सीट दोगे। ऑल राइट, ओके। सो हेयर सी ऑप्शन, यू विल क्या करोगे, लुक द अदर वे सो दैट यू डू नॉट हैव टू शेयर योर सीट। क्या आप दूसरे की तरफ देखोगे कि कोई और इसे सीट दे दे, या कहीं ढूंढोगे सीट, इतना टाइम लोगे आप? नो, दिस इज़ नॉट द बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन नहीं है। यू हैव टू चूज द वन ऑप्शन विच शुड बी बेस्ट। सेकंड में आप टेल हिम स्टर्नली दैट ही शुड हैव रीच्ड अ लिटिल अर्ली एंड ऑक्युपाइड अ सीट। आपको क्या बोलना, आप बोलोगे उसे तुम्हें पहले ना आना चाहिए था, पहले आकर तुम्हें सीट लेना चाहिए था, क्या आप ऐसा बोलोगे? नहीं, ऐसा भी हमें नहीं बोलना है। थर्ड वन, ऑफर टू लेट हिम सिट डाउन एंड शेयर योर सीट। येस, इट शुड बी द बेस्ट ऑप्शन, थर्ड वन। आपको क्या करना चाहिए, अपनी सीट उसे ऑफर कर देनी चाहिए। ओके, थर्ड वन आपका बेस्ट ऑप्शन, जस्ट टिक इट, यहाँ टिक कर लो आप। ओके, बाकी फोर्थ है, ऑफर टू कीप हिज बैग नियर योर फीट। क्या आप उसे बोलोगे अपना बैग नीचे रख दो, अपना, ताकि तुम्हारे पास उतना वो हेवीनेस ख़त्म हो जाए, ये बोलोगे? अरे उसे बैठना है भाई, बैग का तो छोड़ो। फिफ्थ वन, टेल हिम प्लेनली दैट यू आर टू टायर्ड योर सेल्फ। क्या आप उसे बोलोगे कि नहीं मैं खुद थका हुआ हूँ यार, मैं तुम्हें क्या सीट दूँ? नो। जो थर्ड ऑप्शन आप यहाँ लिखना और उसके बारे में आप थोड़ा सा एलोबरेट कर देना नीचे वाले में, ठीक है। ओके, तो ये ब्लैंक दी गई है, आप वहाँ फिल कर लेना। फाइन, इस वाले ब्लैंक में आप राइट हेयर व्हाट यू थिंक, इफ़ यू हैव एनी मोर सजेशंस राइट देम डाउन एज वेल। और आपके पास और कोई भी सजेशन है तो आप यहाँ फिल कर सकते हो इस वाले में। ओके, इस वाले में आप यहाँ ब्लैंक में फिल कर लेना। राइट, आप अपने से कुछ भी और भी ऐड कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि इसके अलावा और भी कुछ करना चाहिए, क्या हेल्प करनी चाहिए। फाइन, सो चिल्ड्रन दिस वॉज द पार्ट थर्ड वीडियो। होप यू वुड अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइजेज, this exercise is very well. So that's all for today. Have a good day and bye bye, and don't forget to subscribe my channel and do hit the like button also. So bye bye.